इज इट देखना साउंड आ रहा है? Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of SuperGrads CAT. I'm Sanjay Singh, and today we are going to have a very important session. A lot of questions from data interpretation is being asked in the CMAT. So in this continuation, we are going to do some very important questions for the CMAT upcoming CMAT examination. So quickly do join, and once you join, do not forget to let us know by your comments as well about your joining. We would be enthralled to know about it. Okay, so the session is based on data interpretation. We will solve some DIs, some important DIs, and do take care कि what are the points to be taken care in mind while solving the DIs. क्या बातें हैं जिनको याद रखना है to solve the questions properly. So majorly what the content is inside, there are some bar graphs. When the data is given in form of bars, like production in different years, the production of a particular company. In place of bar, we can also give the information in type of line graphs as well, where again the same production can be represented on a line chart. How it is? The highest, the actual production is taken as a point. Here the actual point is taken as a point. Here it is taken as a point. So we are drawing a line graph out of it. This is the same way of representing the information. Either you represent it in form of bar, in form of line, no matter. The only thing which matters is solving them. Okay. So you can represent the data in form of tables as well, simple tables, writing the date, writing a particular year, and writing the revenue. Car A, car B, car C, 2020 sale value, 2021 sale value, and so on. इस तरह भी आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो in form of tables, bar graphs, line graphs. The thing which is important is you should be able to interpret the data. आपको डेटा जो लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करना है. What are the tools used in the interpretation of data? Percentage increase, percentage decrease. Percentage increase, decrease. For example, 2020 का production was 400 units and 2021 का production was 500 units. How much is the percentage increase in the production from 2020 to 2021? 2020 से 2021 में कितना percentage increase हो गया? So you will say percentage increase is the increase over the original quantity. So we have an increase of 100 units over the originally 400 units. 1 by 4 into 100, 25% is the net increase. So I can keep on changing the questions and the answer will vary. तो सबसे ज्यादा जो कमांड होनी चाहिए वो कमांड होनी चाहिए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पर कि कितना इंक्रीज हुआ. फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और क्रिएट कर रहा हूं. लेट्स लुक एट कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज लुकिंग लाइक. 2020 का प्रोडक्शन 500 यूनिट्स. 2021 का प्रोडक्शन इज 600 यूनिट्स. Production of 21 is what percent of 20? (2021) का प्रोडक्शन 2021 के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है? Production of 2021 is what percentage of the production in 2020? तो 2021 का प्रोडक्शन न्यूमरेटर में आएगा. किससे कंपेयर करना है? 2022 के प्रोडक्शन से. It is 600. This is 500.
into 100, 120%. So there are 3 to 4 particular terms which you should be aware of while actually calculating the percentage increase, percentage decrease, percentage off, and something others. There is a very famous example which I take and ask the question as well. P is equal to 6Q. First question is, Q is what percent of P? Q is what percent of P? P अगर 6Q के बराबर है तो Q is what percent of P? Q का कंपैरिजन P के साथ, Q का कंपैरिजन P के साथ, so Q by P into 100. Q का कंपैरिजन P के साथ तो Q न्यूमरेटर में, P डिनोमिनेटर में. When I write down this data, P by Q जो होगा उसको हम 6 by 1 लिख सकते हैं. We can write P by Q as 6 by 1. So what is Q? Q is 1 and what is P? P is 6. 1 by 6 into 100. 16.67%. 16.67%. If I change the question little bit, Q is what percent less than P? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने से ही आंसर सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा. क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने से आंसर विल चेंज सिग्निफिकेंटली. बताएं आप लोग कि Q P से कितने परसेंट छोटा है. Q is what percent less than P? Q P से कितने परसेंट छोटा है. Q है कितना भाई? 1. P कितना है? 6. कितना छोटा है Q P से? 5. So you will write the difference in the numerator, then P. Comparison किससे करना है? P से. So difference over P into 100. You will write the, आप Q और P के डिफरेंस को न्यूमरेटर में लिखेंगे which is 5. Comparison from P which is 6 into 100. When you solve this, it will come 83.33%. When you solve this, it will come as 83.33%. Okay. कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस बनाते हैं. All the very best. All the very best, guys. देखो जरा एक बार. I hope data is visible clearly. Blue is denoting the imports. This orange is denoting the export. Total import in 15 and 17 is what percentage of total export in 16 and 18? Total import in 15 and 17 is what percentage of total export in 13 and 16? Import 15 और 17 ऐसे टिक कर लो. 15 17 का import is blue. 450 550. 450 plus 550. Total export in 13 and 17. 13 को टिक करो, 17 को टिक करो. Something another denotion, round mark कर लो. 13 और 17 के export. 13 के export is in the orange. 400 and 650. 400 and 650. 13 and 16. 16 के was 440. 16 के was 440. This is making up to 1000 and this is making up 880. Simplifying by 4, 25 by 21. 25 by 21 is the correct answer.
25/21 is the correct answer. 13 और 16 के एक्सपोर्ट देखने थे, 13 और 16 के एक्सपोर्ट देखने थे, सो वी शुड हैव बबल्ड 13 एंड 16। 13 और 16 को बबल किया, 13 को बबल किया और 16 को बबल किया. This is how you need to do it. You need to interpret the data correctly. This is looking like an interesting one. बताओ जरा एक बार. I hope the data is visible to you. Otherwise, if you say, I can write it down as well for you if there are some issues. But उम्मीद है कि दिख रहा होगा. 330, 400, 360, 450, 450, 600, 400, 440, 550, 650. In how many years import were more than 80% of the average export during all the given years? It's a good one. कि कितने सालों में इंपोर्ट्स जो है वो 80% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट से ज्यादा है. तो सबसे पहले एवरेज एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा. सबसे पहले एवरेज एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा. एक्सपोर्ट्स रेड में है. ओके, सो 400, 450, 600, 440, 650. थोड़ा स्टाइल में ऐड करेंगे. ओके, कैसे? 1000 and 1100, 2100, 20, 21 plus 25, 2540 is the total value. Divide by 1, 2, 3, 4, 5. 508 is the average export. 508 is the average export. कितना average export आ गया भाई? 508. Imports average export के 80% से कितने years में ज्यादा है? तो only average export is not sufficient. We have to find out the 80% of the average export as well. So 80% of it is 4 by 5 of 508. Approximately देख लो, it is 101.6. So basically 404 या 405 406 हो जाएगा. 406 से ज्यादा एक्सपोर्ट्स, 406 से ज्यादा आपके इंपोर्ट कितने साल में है? 406 से ज्यादा इंपोर्ट इज इन हाउ मेनी ईयर्स? वाई 406? बिकॉज मैंने एवरेज एक्सपोर्ट का 80% भी निकाला. 80% निकाला तो नियर अबाउट 406 आ गया. सो कितने सालों में इंपोर्ट इससे ज्यादा है? इंपोर्ट इज दिस कलर. कम है भाई यहां पर भी कम है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा. So there are 3 such years where import were more than where import were more than 80% of the average exports. Is it clear? Thank you. You first find out the average export, then you find out the 80% of it, or 80% से ज़्यादा. 80%, thank you very much. 80% से ज़्यादा, thank you very much, sir. And now see this question. What is the ratio of total export of car A in 2014 and 18 to the total export of car B in these 2 years? It's a table question. Just a minute. Graph is different. Just a minute. Just a minute. Just a minute. ये वाला करो भाई. Graph was different. ये देखो. The ratio of total production of Type A cars in 17
and type D cars in 15 to the total production of type B car and type E car in 13. Type A in 17 and type D in 15. टाइप ए इन 17, ए ये है 17 ये है, so type A in 17 and type B in 15. Just write down their value, 64 plus 56, making up to 120. टाइप B in type E in 13, तो सबसे पहले 13 में आए और 13 में क्या देखा, B और E, B और E, 47 plus 43. What is the value? 40 40 80 और ये 10 90. Simplify by 30, 3, 4. Answer is Delhi. Answer is Delhi. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अप्रोच आपको लगानी है. टाइप ए 17 पूछा था, तो ए में आए और 17 तक पहुंच गए. टाइप ए इन 17, टाइप डी इन 15, टाइप डी इन 15. दिस इज द वैल्यू. टाइप बी एंड टाइप ई इन 13, 13 में आए टाइप बी एंड टाइप ई. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. The data about the student of the commerce in the colleges is represented by the pie chart. What is the central angle corresponding to college D? कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को के डेटा को अगर एक पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट किया जाए, तो व्हाट इज द एंगल गोइंग टू बी मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज डी? हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सबसे पहले कॉमर्स के बच्चों को आप पाई चार्ट पर लाना चाहते हो, सो ओनली द कंसर्न डेटा इज दिस मच. कॉमर्स के बच्चों को पाई चार्ट पर दिखाना है, तो ओनली द कंसर्न डेटा इज दिस मच. कॉमर्स के बच्चे पाई चार्ट पर. कॉलेज डी के करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल बताना है, तो दिस इज 520. एंड व्हाट इज द टोटल? द टोटल इज, इन दोनों का हो रहा है 1000 and there is becoming 850 and this is remaining now of 350. So 12 22 2200. Clear? Clear? So the college D commerce are 550 already given and the total commerce are 2200. And the total commerce are 2200. They are asking the central angle. They are asking the central angle corresponding to it. 1000, 950, 850 and 350. Yeah, 11. सही है. ओके, तो देखो अगर परसेंटेज पूछा होता तो मल्टीप्लाई करते, because in a percentage 100% denotes the complete data, while in a central angle, this total of 360 degree will denote the complete thing. तो 100% का equivalent in the central angle is 360 degree. How much? 360 degree. They are asking me the central angle corresponding to it, so we will just multiply it by 360 to get to our answer. Okay, so 11, 18. Now 11 4 ja 44. 11 4 ja 44. 44 के बाद 8 बच जाता है. 11 7 ja 77. So we will reach the answer approximately very close. 18 4 ja 72. And what is 18 7? 126. एक डेसिमल लगा हुआ है तो 12.6. 84.6 के पास the answer is 85. Got it?
ये वाला मल्टीप्लीकेशन देखा आपने, 18 4 जा 72, 18 7 जा 126, since decimal is there, so 12.6, 84.6, answer is 85. One more question of such type. बताओ भाई. If the data of the production of D type car is represented by a pie chart, पहले कॉमर्स वालों का पाई चार्ट पर दिखाया गया था, अब प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप को अगर आप पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट आर द वैल्यूज विच आर गोइंग टू कम ऑन द पाई चार्ट. तो आपको टाइप डी कार का प्रोडक्शन दिखाना है. तो बेसिकली, ओहो, ये क्या हुआ है, यहां पर मिसमैच हो गया आई थिंक. जस्ट अ मिनट, ये मिसमैच हो गया है. आई शुड हैव चेक्ड इट बिफोर. I think I've updated it later, but some shoes have prevalent. कोई बात नहीं. जस्ट अ मिनट, एक बार देख लेते हैं. चलो पहले ये बनाओ, पहले ये बनाओ. एक दो क्वेश्चन कम रह गए आपके, है ना, एक दो क्वेश्चन कम रह गए. आई वॉज मेकिंग द पीपीटी एज ऑफ नाउ ओनली, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया. Two questions, you could have get more. Production of B type car, production of B type car in 15 and C type car in 13. Production of B type car in 15, production of B type car in 15 and C type in 13. 58 plus 52, 110, is what percentage more than the total production of E in 13 and 14? E का 13 और 14 ये रहा भाई. 43 plus 47, which is about 90. तो 110 is what percentage more than 90? 110 90 से कितने परसेंट बड़ा है? 110 90 से कितने परसेंट बड़ा है? तो हाउ मच इट इज बिग? 20. कंपेयर किससे करना है? ये बाद वाले डेटा से, ई के डेटा से. सो 20 ज्यादा होना, 20 ज्यादा होना over 90, because we have to compare from type E data, और type E 13 और 14 का is 90. तो 20 more over 90, 20 more over 90, 2 by 9, very famous fraction, 22.22%. Because 1 by 9 is 11.11%, so 2 by 9 is 22.22%. So 2 by 9 is 22.22%. Let's move on. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है, आप लोग एक बार पढ़ो ध्यान से, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ो भाई, फिर डिस्कस करते हैं. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट कॉलेजेस. टोटल स्टूडेंट्स आपको बताए गए हैं. अगर 10% ऑफ द गर्ल्स की शिफ्टिंग की जाए कॉलेज ए से ई में, तो कॉलेज ई में गर्ल्स का परसेंटेज कितना इंक्रीज हो जाएगा? दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट कॉलेजेस आर 1800. 1800 में से 20% is in the college A. What is 20% of 1800? 1800 का 10% 180, 20% 360. तो कॉलेज ए में कितने हैं? 360.
20% ऑफ 1800 इज 360। कॉलेज ए में 360, उसमें से बॉयज और गर्ल्स 4:5। 360 को 4:5 में डिवाइड कर दो। आई थिंक नॉट अ बिग, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 4 5 जा 9, 9 4 जा 36, 4 5 जा 9, 9 4 जा 36, so it is 160 and 200। बॉयज और गर्ल्स की एक्चुअल वैल्यू आ गई 160 और 200। नाउ 10% ऑफ द गर्ल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉलेज ए टू ई। 200 गर्ल्स है, उसमें 10% इज 20। 20 का ट्रांसफर किया गया टू ई। 20 का ट्रांसफर किया गया टू ई। तो ई की पहले इनिशियल वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं। टोटल इज 1800। 1800 का 10% 180। 180 को 2:3 में डिवाइड कर दो। 2 + 3 5, 5 इज इक्वल टू 180, 5 इज इक्वल टू 180, सो 1 इज इक्वल टू 36 आई थिंक। सो दिस इज 72 and 108। तो ये इनिशियल डेटा है भाई बॉयज और गर्ल्स का। दिस इज द इनिशियल डेटा ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज ई। तो इनिशियली कॉलेज ई में जो गर्ल्स थी वो 108 थी, और अब 20 ज्यादा हो गई हैं। इनिशियली कॉलेज ई में जो गर्ल्स थी वो 108 थी, कॉलेज ई की गर्ल्स, एंड दिस इज द इंक्रीज इन द गर्ल्स। तो 20 का इंक्रीज ओवर 108 इज व्हाट परसेंटेज? 20 का इंक्रीज ओवर 108 is what percentage? Just simplify. This is about 54,000 by 54. Keep on simplifying because कुछ famous type का ही आंसर आएगा। 500 by 27. तो 27 1 जा 27। 2 टाइम्स नहीं जा पा रहा है, 2 टाइम्स नहीं जा रहा है। अगर 2 टाइम्स ज्यादा तो 20 आंसर आ जाता है। 18 पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, देखते हैं। उसके बाद 23 इज रिमेनिंग 230। सो 230 इज गोइंग टू बी 27 इंटू 8 जाओ। 27 इंटू 8 जाओगे, या सो 8 से ऊपर जा सकते हैं। 18.52 इज द करेक्ट आंसर। 18.52 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। अप्रोक्सीमेशन विल प्ले द रोल। अप्रोक्सीमेशन विल प्ले द रोल कि आपको समझ में आ गया था कि भाई आंसर जो है 1/54 के फॉर्म में आ रहा है, और 1/54 मतलब 20% तक तो नहीं पहुंच रहा है, 20% से थोड़ा छोटा है। कितना छोटा है वो हमने देख लिया, और वही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज लुकिंग प्रीटी इजी आई थिंक। हॉकी पर कितना पैसा खर्च किया गया ये बताया गया है। हाउ मच लेस मनी इज स्पेंड ऑन द बास्केटबॉल देन ऑन द क्रिकेट। अच्छा, हॉकी पर एक्सपेंडिचर पता है, अब बास्केटबॉल पर क्रिकेट से कितना कम खर्च किया गया। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द हॉकी इज गिवन। हाउ मच लेस इज स्पेंड ऑन द बास्केटबॉल देन ऑन द क्रिकेट। हॉकी कहां है भाई? हॉकी येलो, ये तो परसेंटेज दिख ही नहीं रहा है। 13 होगा ये, इजंट इट, कि 14 है? येलो कलर मैच कर लो ना। 60 70, जी हाँ 13 है। So 13% is given as 6656। हाउ मच लेस मनी, अच्छा परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस कुछ नहीं बोला गया है। एब्सोल्यूट पैसे की बात की गई है कि कितना कम खर्च किया गया। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की गई है कि बास्केटबॉल पर क्रिकेट से कितना कम खर्च किया गया। व्हाट इज द स्पेंडिंग ऑन द बास्केटबॉल? ग्रीन वाला 17%। व्हाट इज द स्पेंडिंग ऑन द क्रिकेट? 25। मॉड मैंने पहले ही लगा के रखा है। क्रिकेट पर ज्यादा है, बास्केटबॉल पर कम है, तो आप 25 - 17 कर लो। व्हाट दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ 8%। 13% का वैल्यू पता है, 8% का वैल्यू बताना है। 13% का वैल्यू पता है, 8% का वैल्यू बताना है, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा। 13 का हाफ कितना होता है? 6.5। तो 6.5 पे 3300 आ जाता।
तो 3300 से बड़ा आंसर होगा, गया। और इससे तो छोटा ही होगा, गया, गया आंसर। अगर 13%, अगर 13% 6656 है, तो 6.5%, 3328। हमको 8% चाहिए, तो 3328 से बड़ा आंसर, 3328 से बड़ा आंसर, बट 66 से छोटा आंसर। ओनली वन ऑप्शन इज लाइंग इन बिटवीन, नो नीड टू सॉल्व इट, दैट इज योर आंसर। कम, डू इट। बास्केटबॉल पर हाउ मच मनी इज बीइंग स्पेंट इज गिवन टू यू। What is the ratio of money spent on hockey and cricket together to the ratio of tennis and football together? What is the ratio of money spent on hockey and cricket together to tennis and football together? हॉकी प्लस क्रिकेट की स्पेंडिंग अपॉन टेनिस प्लस फुटबॉल की स्पेंडिंग का रेशियो बता। हॉकी येलो 13%, क्रिकेट is this one 25%, tennis is where it is tennis, this is here 35, and what is football? Football is 10. Why I'm directly comparing the percentages? Can someone tell me? Give me with the logic why I am able to directly put their values, not calculating their values. उनकी values क्यों नहीं निकाल रहा हूं मैं? Individually 13% की value अलग से निकालना, 25% की value अलग से निकालना, फिर नीचे 35% की value निकालना. Why I'm not doing like this? इसलिए नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि ये भी 13% ऑफ टोटल ही है, ये भी 25% ऑफ टोटल है। ये टोटल में जितना व्हाट डू से टोटल मनी स्पेंड हुआ है, तो क्रिकेट हॉकी पर कितना है? 13% ऑफ टोटल। और ये आपका दूसरा क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट पर कितना है? 25% ऑफ टोटल। टेनिस पर कितना है? 35% ऑफ टोटल। यहां पर कितना है? 10% ऑफ टोटल। तो टोटल तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट ही हो जाएगा। सो व्हाई वी शुड बॉदर अबाउट इट? अगर आपको टोटल वैल्यू डालोगे भी, इसकी वैल्यू से निकाल के बास्केटबॉल से टोटल आ जाएगा, बास्केटबॉल की वैल्यू से टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल स्पेंडिंग कितना है। तो टोटल न्यूमरेटर में टोटल डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट ही होना है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट, क्योंकि न्यूमरेटर में भी आ जाएगा आपका 38% ऑफ टोटल और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 45% ऑफ टोटल। टोटल से टोटल कटेगा, तो हम इतनी मेहनत ही क्यों करें फिर? Isn't it? ठीक है, बीच के एक दो क्वेश्चंस अगर अभी बन जाते हैं तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप्स कार। ये यहाँ पर ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ है ना, प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप्स कार। तो एक ये हमारा क्वेश्चन वेस्ट हो रहा है, क्या हम इसे बचा सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप कार, सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू 216। प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप कार, प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप कार, सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू 2016। तो डी टाइप कार को पूरा सर्कल में ले लो, डी टाइप कार को पूरा सर्कल में ले लो। प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप कार, सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू 2016। तो डी टाइप कार को पूरा सर्कल में ले लिया। दे आर आस्किंग द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू 2016। तो 65 ओवर 65 ओवर, थोड़ा स्टाइल में ऐड करेंगे, देखना जरा कैसे। बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। 60 प्लस 65 इज 125,
and this is 108 and this is 66. ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे. So this is 174 plus 125. This is 9, 9 and 2. Wow. 65 upon 229. You are interested in the central angle. So do I need to multiply by 360? Since we are interested in the central angle, हमको central angle निकालना है तो किससे multiply करना चाहिए? 360 से. Not from 100. 100 से कब multiply करते? जब percentage निकालना होता. 100 से कब मल्टीप्लाई करते जब परसेंटेज निकालना होता. सिंस हमको सेंट्रल एंगल निकालना है तो 360 से. इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लो, क्या दिक्कत है भाई, 300 कर लो. डिनोमिनेटर में 299 को 300 अप्रोक्सीमेट करना इज अ वेरी स्मॉल अप्रोक्सीमेशन. 299 को 300 लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 6 5 5 is simplifying. 13 times 13 7 ja. That was a good enough question. That is the reason I don't want to waste it. देखो 78 is the correct answer. भाई नोट डाउन कर लेना अच्छे से कॉपी में once the session is over, है ना. Once the session is over अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया था बस. 299 को 300 लिखा and this is too small approximation. You can always do such approximation. 1 over 299 यार, मतलब 0.00 में जा रहा है तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. इतना अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो. Thank you very much. I hope you might have thoroughly enjoyed the session. I will meet you in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great time. You might be knowing that we have launched a year-long 2024 batch for CAT and other management entrance exams as well. So you can, what are the key features of this batch? They are written over here. So you should be going through them. The most personalized course, literally doubt resolutions, lot of mocks along with CAT Set Go, which is the new feature what we are bringing for you. So chalo, let it be. They are not in a format, and I want to keep it a 40 minutes only. So take care of yourself. We'll meet you soon in the next session with some other important topics, with some other important information. Till then, have a great time. See you. Take care of yourself. See you in the next session.